Hello guys. Hello dear all student. Are you able to listen me properly? Hello dear all students. Are you able to listen me properly? Good evening to everyone. Hello guys. So we are going to begin with our lecture. So today I am going to explain you locomotion and movement chapter number 20 CBSE 11th standard NEET biology, and topic which we are going to cover today, that is a structure of a contractile protein such as a actin and myosin. आइए चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या होता है. ठीक है, सी मैं मेरे पेन टैब के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. सो व्हाट आर फर्स्ट ऑफ ऑल contractile protein? So contractile proteins are those protein which are found in muscle which undergo contraction. They are called contractile protein. Contractile protein वो वाले प्रोटीन होते हैं जो हमारे मसल्स में पाए जाते हैं और हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. उनको हम कहते हैं contractile protein. Contractile proteins are those protein which shows ability of a contraction. They are called contractile protein. Now I would like to tell you there are two main famous type of a contractile protein found in our cell, our body, and these proteins are, one is the actin protein as you can see, and second one is myosin protein. One is actin protein, second one is myosin protein. You can see this one, upper one is the actin protein and this lower one is the myosin protein. So I will tell you this both in detail. Hello guys, are you able to listen me properly? Can you hear me properly? Can you listen me? Can you hear me properly and see me properly? आप मुझे देख सकते हो, सुन पा रहे हो properly? Come on, भूषण, शुभम, निवृत्ति. Hello guys, can you hear me? Okay, so let's start. So now I'll tell you the structure of actin protein and myosin protein in detail, and we'll begin this topic. So this is the structure of actin and myosin protein. Let's start with this. First of all, I'm going to explain you about actin protein, then I'll tell you about myosin protein. So this structure, upper one A structure is the actin protein and this lower one B structure is of मायोसिन प्रोटीन. तो दोनों में क्या डिफरेंस है पहले देख लीजिए. ये देखिए, हमारी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट करने को, मतलब मसल्स की मूवमेंट करने के लिए हमें एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन की जरूरत होती है. हमारी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट करने के लिए हमें एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रोटीन की जरूरत होती है. अब ये देखिए, एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर आज हम समझ लेते हैं और कल उनका मैकेनिज्म देखेंगे कि दोनों साथ में मिलकर वर्किंग कैसे करते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. First, actin. Actin is a thin protein. Actin is thin protein, whereas myosin is thick protein. क्या difference है दोनों में? Actin is a thin protein and myosin is the thick protein. Actin is a thin protein as compared to the myosin because difference in their molecular weight. Actin, which is a thin protein which is further divided into two parts, means further it is made by the two different type. One is a G protein and second one is a F protein. What is meant by G and what is meant by F? G stand for globular protein. G stand for globular protein and F stand for filament protein. G stand for globular protein and F stand for filament protein. Now this filament protein is of two type. One is a tropomyosin and second one is a troponin.
एक होता है ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। ये दो प्रकार के फिलामेंट प्रोटीन होते हैं। समझ रहे हो आप क्लियरली? ये देखिए, एक्टिन ये एक थीन प्रोटीन है जो दो अलग अलग सब टाइप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ है। एक प्रोटीन होता है जी प्रोटीन जिसको हम कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, और दूसरा होता है एफ प्रोटीन, मतलब होता है फिलामेंट प्रोटीन। ये आप देख रहे हो, ये एफ एक्टिन का मतलब होता है फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन। और ये दोनों अलग अलग टाइप मिलके एक एक्टिन प्रोटीन बनता है। अब जो ये फिलामेंट प्रोटीन है, फिलामेंट प्रोटीन के दो अलग टाइप बनते हैं। फिलामेंट प्रोटीन के दो अलग टाइप बनते हैं, और वो अलग टाइप होता है ट्रोपोनिन और एक होता है ट्रोपोमायोसिन। तो आइए चलिए पहले इन दोनों के बारे में समझ लेते, फिर हम मायोसिन की तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। एफ एक्टिन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज डबल हेलिकली अरेंज विथ ईच अदर। देख रहे हो आप, एफ एक्टिन ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और ये एक दूसरे के साथ डबल हेलिकली अरेंज होते हैं। जैसे डीएनए कैसे होता है, डीएनए कैसे दिखता है हमें, डीएनए ऐसे दिखता है ना, तो डीएनए के जैसे ये इनका स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, एफ एक्टिन इज द ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज डबल हेलिकली अरेंज विथ ईच अदर। ये डबल हेलिकली अरेंज है एक दूसरे के साथ, मतलब ऐसे लगता है कि डीएनए है, लेकिन ये डीएनए नहीं है, ये फिलामेंट प्रोटीन है एफ एक्टिन। एफ एक्टिन इज अ फिलामेंट प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज डबल हेलिकली अरेंज विथ ईच अदर, एंड it is covered by two type of a protein. It is covered by two type of protein. First protein is tropomyosin. Now what is tropomyosin? Tropomyosin is a type of a protein which is helically overlap on F actin. Tropomyosin क्या है? Tropomyosin ये भी एक प्रोटीन का प्रकार है जो कि F प्रोटीन के बिल्कुल ऊपर हेलिकली ओवरलैप्ड है, और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर भी एक प्रोटीन आता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ फिलामेंट प्रोटीन। ट्रोपोनिन इज ऑल्सो द टाइप ऑफ अ फिलामेंट प्रोटीन विच इज लोकेटेड ऑन द ट्रोपोमायोसिन एट इट्स रेगुलर इंटरवल विथ सम डिस्टेंस। ट्रोपोनिन क्या होता है? ट्रोपोनिन एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर थोड़े गैप में अवेलेबल होते हैं, थोड़े गैप में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये एफ प्रोटीन है। एफ प्रोटीन ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज होता है जैसे डीएनए है। और ट्रोपोमायोसिन क्या है? ट्रोपोमायोसिन उनके ऊपर अरेंज होते हैं। मान लो आपके पास एक एफ एक्टिन प्रोटीन है, वो ग्लोबुलर है, बॉल से बना हुआ है, लेकिन अगर आप उन सभी बॉल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखना चाहते हो तो आपको उनके ऊपर एक चेन लगानी पड़ेगी, और वो चेन क्या होगी? वो चेन होगी ट्रोपोमायोसिन। और उस चेन को लॉक करने के लिए आपको एक ताला लगाना पड़ेगा, लॉक लगाना पड़ेगा, और उस लॉक को हम कहेंगे ट्रोपोनिन। जब तक ट्रोपोनिन नहीं निकलता तब तक ट्रोपोमायोसिन अलग नहीं होगा, और जब तक ट्रोपोमायोसिन अलग नहीं होता तब तक एफ एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होंगे। और जब तक एफ प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन आपस में बाइंड नहीं होते तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए, ये मेरा बाइसेप्स मसल है। अगर मुझे बाइसेप्स मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे एक्टिन और मायोसिन दोनों की जरूरत पड़ेगी। कैसे? इसका मैकेनिज्म जो है एग्जैक्टली मैं आपको कल समझाऊंगा, कल के लेक्चर में, लेकिन यहां पे एक शॉर्ट में देख लीजिए। जब एफ एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्लाइड करते हैं, बाइंड होते हैं, उसके बाद ही एक्टिन और मायोसिन का मैकेनिज्म होता है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एफ एक्टिन मायोसिन के ऊपर बाइंड होना चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन एफ एक्टिन मायोसिन के ऊपर तभी बाइंड होगा जब ट्रोपोमायोसिन निकलेगा, और ट्रोपोमायोसिन तभी निकलेगा जब उसके ऊपर का ट्रोपोनिन जो लॉक है वो निकलेंगे। ठीक है, तो एफ एक्टिन क्या है? एफ एक्टिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज डबल हेलिकली स्ट्रक्चर। एफ एक्टिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो डबल हेलिकली एक दूसरे से बाइंड हुआ है, और ट्रोपोमायोसिन उनके ऊपर एक चेन है जो एफ एक्टिन को प्रॉपर्ली बांध के रखती है। और ट्रोपोनिन क्या है? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के ऊपर के लॉक हैं। ये तभी ओपन होंगे जब हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना हो, और अगर ये ओपन नहीं होते हैं, अगर ये ट्रोपोमायोसिन से सेपरेट नहीं होते हैं, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होना मुश्किल है। ठीक है, नियर अबाउट नामुमकिन, इम्पॉसिबल समझ लो, बिकॉज ट्रोपोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट ट्रोपोमायोसिन, एंड ट्रोपोमायोसिन सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट एफ एक्टिन। तो ये हो गया हमारा एक्टिन प्रोटीन, क्लियरली समझ गया आप लोगों को।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मायोसिन में। चेंज कर लेता हूं हमारा कलर पेन। ओके चलो हमने बदल दिया। अब हम देखते हैं मायोसिन की तरफ। क्या है मायोसिन? ये देखें मायोसिन। मायोसिन इज फर्स्ट ऑफ ऑल थिक प्रोटीन एज कंपेयर टू द थिन प्रोटीन एक्टिन। एक्टिन थिन प्रोटीन है तो मायोसिन थिक प्रोटीन है। मायोसिन इज अ थिक प्रोटीन कंपेयर टू द एक्टिन प्रोटीन एंड this myosin is made by the subprotein called meromyosin, and this meromyosin have two type. One is a HMM, second one is a LMM. अब क्या फुल फॉर्म होते हैं आपको इनके फुल फॉर्म आपको नीट में कभी कभी पूछे जाते हैं। व्हाट इज HMM, व्हाट इज LMM? अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, आप लिख लेना। HMM का मतलब होता है हेवी मेरोमायोसिन और LMM का होता है लाइट मेरोमायोसिन। ये इसका मतलब होता है मेरोमायोसिन ऊपर के जैसे, ठीक है। तो HMM मतलब हेवी मेरोमायोसिन, LLM मतलब लाइट मेरोमायोसिन, और ये दोनों के दोनों मेरोमायोसिन का प्रकार है। और मेरोमायोसिन से क्या बनता है? मायोसिन प्रोटीन बनता है। सो मायोसिन इज द थिक प्रोटीन which is further made by the type of protein called meromyosin, and meromyosin are of two category, heavy meromyosin and light meromyosin. heavy meromyosin, light meromyosin. आइए चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। myosin protein is a thick protein and this is the structure of myosin protein. Myosin protein have a first head region, and on the head region there are two sites where two things can bind. One is actin binding site एंड सेकेंड वन इज एटीपी बाइंडिंग साइट। तो यहां पे है एक्टिन बाइंडिंग साइट और यहां पे है एटीपी बाइंडिंग साइट। अब ये दोनों चीजें क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट मतलब जब हमें मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना होगा तब हम ट्रोपोमायोसिन को पहले रिमूव करेंगे और ट्रोपोनिन को रिमूव करेंगे, और जैसे ट्रोपोनिन रिमूव होगा तो उसके बाद क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन ये भी सेपरेट हो जाएगा। किससे सेपरेट हो जाएगा? एक्टिन से, और एक्टिन प्रोटीन फ्री हो जाएगा। और ये एक्टिन प्रोटीन कहां बाइंड होंगे? ये एक्टिन प्रोटीन यहां पे बाइंड होंगे, यहां पे। और जैसे एक्टिन प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन के ऊपर स्लाइड करेंगे तब जाके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये पहली साइट। अब एक्टिन और मायोसिन तो एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए, उसके बाद क्या जरूरत है? उसके बाद जरूरत है एनर्जी की, मतलब एटीपी। तो एटीपी यहां पे बाइंड होते हैं, और जैसे यहां पे एटीपी बाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद मसल्स का वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। यस, मायोसिन इज अ थिक प्रोटीन विच हैव two main region. One is the head region and second one is the cross arm which have a long tail also. Yes, head region is the region where actin binding sites are available and ATP binding sites are available. Actin binding site is a site where actin proteins bind and slide on the myosin. When tropomyosin get removed from the when troponin protein get removed from the tropomyosin, and once troponin is removed, tropomyosin gets separate, and once tropomyosin gets separate, F-actin protein directly slide on the actin binding site of a myosin, and once actin and myosin both bind with each other, mechanism can start, but mechanism also need energy. ये इंजन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो एनर्जी क्या होती है? एटीपी. सो एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड्स एट दिस टो पोजीशन. So once ATP molecule is bind to the myosin and actin protein also bind to the myosin, mechanism of muscle contraction takes place very easily. So this is the structure of a actin and myosin protein in short. ठीक है गाइस, मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि जो कैमरा था मेरे पास आज का लाइव रिकॉर्डिंग का, वो गलती से मैंने चार्जिंग पे नहीं रखा होता, ध्यान से निकल गया था मेरा, तो इसके कारण मैं उससे लाइव नहीं ले पाया। नहीं तो आज हमें मसल एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन भी देखना था और मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी देखना था। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हम कल देखेंगे। तब तक मैं कैमरे को भी चार्ज करने रख देता हूँ, आज मैंने चार्ज कर ही दिया हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस for watching this lecture. Come on, tell me, do you have any problem guys right now? Do you find any problem in the lecture? Come on guys, do reply me.
आज गलती से मैंने 2 लिंक भेज दी थी। एक लिंक जो भेजी थी मैंने वो वेबकैम की भेजी थी, लेकिन मुझे कैमरा अटैच करना ही नहीं था, फिर मैंने स्क्रीन शेयरिंग की लिंक भेजी। 2 अलग अलग लिंक होती है यूट्यूब पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो फिर हम कल लेक्चर देखेंगे।